Oh. Hi Suraj. I don't. Sorry. Yeah, no worries, no worries. Yeah, actually, I had forgot, and I don't even remember if I have booked a call or something. I totally missed the agenda and everything. I see. It happens most of the time when we book the call for advance for like so many days. It happens to me as well. But yeah, I can understand. So Suraj, I can see you're based out of Delhi, Yeah, and where in Delhi? Lajpat Nagar. Oh, you're in from Lajpat Nagar. Nice, nice. So I checked your profile that you shared with me, and I can see that you are running this company called the Digital Frog, right? Yeah, So you are doing so you're the agency owner since 8 years now. yeah, Okay, okay. And how many team members are there inside your company? it's below 10. Below 10. Okay. And what kind of services do you exactly provide? Because the reason why I'm asking this is that I checked your LinkedIn, I checked your company's profile as well, right? So one thing that I wanted to understand is like who is your ICP according to you, and what are the kind of services that you are providing, if you don't mind me telling me that. Sure, I'll do share that. Before that, Rohan, please help me with the agenda and why we are here on the call because, as I said, I totally forgot it. Okay, okay. So basically, I'm running this funnel called where I'm helping the founders, the business owners to help them understand like what's the how they're not able to grow their business on LinkedIn, and what's the one thing that they're missing on LinkedIn, and what they have tried and what they have not tried. So you probably have signed up on this website. Let me just bring that up. Yeah, that would be. Even I am trying to find my details on my email. I'm not able to see with that. No worries, no worries. So Yeah, you now I remember. चलो बढ़िया. Because मेरे को डोमेन का वो याद है. अच्छा. ओके. ओके. नाइस नाइस. हाँ तो मतलब ये दिस इज अ एड यू माइट हैव सीन मे बी ऑन द फेसबुक और मे बी ऑन इंस्टाग्राम. Instagram, वहां maybe. से यू जस्ट बुक दिस कॉल तो इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस लिंक. Yes, है ना? please. तो मतलब फ्यूचर के लिए आपके लिए इट विल बी गुड. तो ये मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया. आई थिंक आपने कॉल Sorry, जो and शैल I टेल यू कि आपने कॉल भी कब बुक की थी इफ यू वांट. नहीं नहीं अभी मेरे को याद आ गया. चलो बढ़िया है बढ़िया है अभी I आप. was doing thing because याद नहीं रहता तो you cannot connect. एग्रीड नो मेक सेंस. मेक सेंस. चलो अब स्टार्ट करें फिर. Yes. ठीक है. So, yeah, you were asking something. I missed the question again. Hmm. So see, basically, what I did was like I checked your LinkedIn, I checked your company's profile as well, right? But I want to understand from you first, like who is your ICP and what kind of services that you are providing, and then I will move to the next part. Okay. So, our services are like SEO, search engine optimization, website development. Now we are trying to add LinkedIn personal branding and AI automations for LinkedIn, like content generation and everything. And apart from that, we have a member who just said like 2 days back, he has experience in cold emails as well. So we want to include that as well. So currently these four things which we are serving right. So currently you are providing SEO and website development, that is your main services, but you want to add LinkedIn management, AI automations, cold emailing, right? Yeah. So this makes five, right? Okay. And who is your ICP? Mostly we are trying to connect with founders only. The niche we have worked with, it's healthcare, nonprofits, SaaS industries, and HR. And now we have added two new niches.
with whom we are working, which is ceramics and glass. Ceramic and glass. Okay. And what's your main acquisition model? It's monthly recurring basis. No, I mean to say that like how are you getting leads? Mostly referral through clients. Okay. Have you tried any other method? Most of time I get inquiries from my LinkedIn only. I Uh, see. so it's not like on a regular basis. It's once in a while. Once in a while. हाँ, जब मैं एक्टिव होता हूँ तो आ जाता है, नहीं होता तो नहीं आता. So Uh, I'm not that active on LinkedIn. अभी अभी I'm trying to fix everything and start posting on it. अच्छा मतलब लिंक्डइन से यू आर ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ रिजल्ट कभी कभी है ना? Yeah. ठीक है। और कौन सी कंट्री यू वांट टू टारगेट फॉर योर क्लाइंट्स? Okay. So it's US, हम्म। Germany, Canada. यूएस, कनाडा एंड जर्मनी, चलो ठीक है। और अभी आपको जो क्लाइंटेल है जितना हम वर्क किया, हेल्थ केयर, साइंस, ये तीनों इसी से थे या फिर इंडिया से भी थे? इंडिया से भी है. अच्छा, इंडिया से भी है। ये कंट्री आपको टारगेट करनी है, बट अभी आप लोगों का जो करंट क्लाइंटेल है वो इंडिया से भी है। इंडिया से भी है. इंडिया से ग्लासेस के हैं, हेल्थ केयर के हैं. एंड यूएस से वी हैव नॉन प्रॉफिट एंड सैस. हम्म। उन्हीं से सेरामिक है. अच्छा। सो इट्स और लिंक्डइन से जो आपको वंस इन अ वाइल इंक्वायरीज आती हैं, दैट इज फ्रॉम विच कंट्री, इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड? आउटसाइड. आउटसाइड ओनली, चलो ठीक है, ठीक है, गॉट इट। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर? नहीं, आई थिंक. हम्म। चलो, आई गॉट इट। अब फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी कैन टॉक अबाउट व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि मेरे को आइडिया मिल गया आपको मैं क्या वर्क कर रहा है क्या वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने जो अपना एनालिसिस किया, नाउ आई कैन टेल यू दैट। ठीक है, सो आई कीप दिस कॉल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नो इफ एंड बट, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेल यू कि आप इतना अच्छा ये चीज कर रहे हो, इतना अच्छी बेकार चीज कर रहे हो। वट एवर इज राइट, वट एवर इज रॉन्ग, आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू शेयर दैट। ठीक है, सबसे पहली चीज, बाय लुकिंग एट योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, मेरे को वाइब नहीं आया दैट व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर सेलिंग। ठीक है, मतलब मुझे नहीं समझ में आया था कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर सेलिंग, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और ये मैंने मतलब ऐसे नहीं किया कि आई जस्ट लुक्ड एट योर प्रोफाइल। ठीक है, बेसिकली सिंस आई हैव लाइक समवेयर अराउंड 7 और 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और अब तक मैं मेरे हिसाब से 10,000 से ऊपर प्रोफाइल्स देख चुका हूँ लिंक्डइन के ऊपर कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, इसलिए मैंने अपना एक छोटा सा टूल भी बनाया, इट्स अ फ्री टूल। ठीक है, वो बेसिकली आपको बताता है कि आपके प्रोफाइल में क्या सही है क्या सही नहीं है। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ बस शेयर करता हूँ। मगर आई वांट टू टेल यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ यू कैन सी माई चैट जीपीटी राइट नाउ, है ना? तो मैंने आपको वही इसका मतलब ये मैं उसको लाइव भी करके दिखा सकता हूँ, बट मैंने कर ही लिया तो मैं आपको वही दिखाता हूँ। मैंने इसका ना 2 फाइल्स दी हैं, दोनों आपकी फाइल्स हैं। ठीक है, एक आपकी प्रोफाइल का सॉरी, एक आपकी प्रोफाइल का पीडीएफ जो ठीक है. we downloaded from save to pdf, and the one is the screenshot of the complete linkedin profile। क्योंकि होता क्या है, the moment you download the pdf आपके पास ना वो डेटा नहीं आता, इंक्लूडिंग योर बैनर एंड द कवर पिक। ओके. ठीक है, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने आपकी फाइल डाउनलोड की तो यू कैन सी कि इसमें मेरे पास आपका प्रोफाइल पिक भी नहीं है और बैनर भी नहीं है। इट्स ओनली द कंटेंट दैट आई हैव गॉट। तो हम इसमें क्या करते हैं, पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं लिंक्डइन पर। ठीक है, तो आई यूज दिस एक्सटेंशन कॉल्ड गो फुल पेज। ओके. तो ये क्या करेगा, ये आपके पूरे करंट पेज का ये मेरे को स्क्रीनशॉट दे देगा लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने इसको यही दिया, एंड देन दिस प्रॉम्प्ट दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, आई थिंक 7-8 पेजेस लॉन्ग प्रॉम्प्ट है। ये मैंने अपने लिए बनाया था जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग। तो ये प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है, ये आपको बेसिकली आपके हर सेक्शन के लिए लिंक्डइन के इट इज गिविंग यू अ स्कोर। ओके. ठीक है, तो इसने मेरे को ये प्रॉम्प्ट के हिसाब से आपको स्कोर दे दिया 6.4। ठीक ओके. है, अब ये इसने बताया कि आपके में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। सो दिस प्रॉम्प्ट इज नॉट ओनली अबाउट फाइंडिंग द गैप्स, बट इट इज ऑल्सो अबाउट व्हाट इज वेरी गुड इनसाइड योर प्रोफाइल। ओके.
ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी कि आईसीपी इज प्रेजेंट बट टाइटली बाउंडेड. Outcomes are conceptually clear but not always by explicit. Authority exists but is partially buried. Inbound DM readiness is moderate, not engineered. Profile is oscillates between authority narrative and assumed density. ठीक है. प्रोफाइल फोटो में इसने स्कोर दे दिया, बैनर में इसने स्कोर दे दिया, वहां पे बता दिया कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर नॉट डूइंग. राइट. ठीक है. फिर उसने हेडलाइन में दिया आईसीबी इज डिफाइंड बट नॉट नैरोड. अबाउट सेक्शन में बता दिया आपका कि आपने क्या सही और क्या सही नहीं है. ठीक है. फीचर सेक्शन में आपने क्या क्या प्रेजेंट किया हुआ है, क्या क्या प्रेजेंट नहीं किया हुआ, दैट इज व्हाट इट इज गिविंग मी. एक्सपीरियंस सेक्शन में आ गया, सर्विसेज सेक्शन, स्किल्स सेक्शन, सीटीएम. अब मेन पॉइंट इज गैप्स. ठीक है. राइट. क्या क्या प्रोफाइल में क्या गैप्स है. तो फाउंडर आईसीपी इज ब्रॉड, स्टेज साइज कॉम्प्लेक्सिटी अनक्लियर. ठीक है. साइमल्टेनियस पोजीशनिंग एज मार्केटर, ऑपरेटर, एडवाइजर, नॉन प्रॉफिट एंड कमर्शियल फाउंडर. अब ये मतलब आप ये बाद में एक बार पढ़ना है इसको डिटेल में, मैसेजिंग एंड क्लैरिटी इश्यूज एवरीथिंग आप एक बार डिटेल में जाना. मगर जो इससे मैंने एक चीज समझी कि भाई मेरे को ये बता कि व्हाट्स द आईसीपी ऑफ दिस पर्सन. क्योंकि आपकी प्रोफाइल को जो मैंने देखा तो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन था कि यू वांट टू जनरेट लीड्स व्हाइल यू स्लीप. ठीक है. तो लिंक्डइन विजिबिलिटी प्लस पर्सनल ब्रांडिंग एआई ऑटोमेशन, मैं समझ गया कि आप कहीं ना कहीं लिंक्डइन मार्केटिंग सर्विसेज देना चाह रहे हो, लिंक्डइन मैनेजमेंट. ठीक है. बट मैं कंफ्यूज हुआ जब मेरे को ये फीडबैक मिला कि क्या है. तो उसने मेरे को बताया कि चलो ठीक है, आपको जो फाउंडर्स बिजनेस ओनर आपको इन सबको टारगेट कर रहे हो. मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो सही है आपका. मगर फिर मैंने से पूछा कि व्हाट इज द सर्विस ही इज ट्राइंग टू सेल टू आईसीबी. फाउंडर एडवाइजरी फोकस ऑन बिल्डिंग सिंपल बिजनेस सिस्टम्स एंड ऑपरेशनल क्लैरिटी. अब आपने जो मेरे को 5 सर्विस बताई, ठीक है, वो नहीं समझ पाया ये चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट है. ओके. ठीक है. तो दिस, और मैं भी जब आपकी प्रोफाइल पे तो मैं भी यही कंफ्यूज था. मैंने कहा यार यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू से लिंक्डइन मैनेजमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. और जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे को यही सब समझ में आ रहा है. मगर द मोमेंट आई एम गोइंग ऑन योर द डिजिटल फ्रॉग, तो मैं आपकी वेबसाइट पर गया था द डिजिटल फ्रॉग. तो जब मैं आपकी वेबसाइट पर गया द डिजिटल फ्लो, तो मेरे को यहाँ पे आई गॉट लॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट यू वर ट्राइंग टू अचीव. ठीक है. तो वो सिंक नहीं आया, वो सिमेट्री ऑफ मैसेजिंग नहीं आई. अब आप ये समझो यार कि आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, जो मैंने आपका कंटेंट देखा. ठीक है. आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो कंटेंट पोस्ट करने के बाद व्हेन पीपल आर चेकिंग योर प्रोफाइल, ठीक है, शो ऑल पोस्ट में जाता हूँ. सो व्हेन पीपल आर चेकिंग योर प्रोफाइल, ठीक है, तो अब आप कंटेंट क्यों पोस्ट कर रहे हो. यू आर पोस्टिंग कंटेंट टू गेट क्लाइंट्स और यू आर पोस्टिंग कंटेंट टू गेट लाइक्स. अभी कुछ ऐसा नहीं है. अभी जस्ट आई एम ट्राइंग टू बी एक्टिव. You are trying to be active, चलो ठीक है. मगर what keeps you motivated on LinkedIn when you post content? Is it the likes or is it something else? अभी उस चीज पे भी फोकस नहीं किया है. For तो example, if I ask you right now, फोकस नहीं है कि मेरे को लाइक चाहिए, कमेंट की नहीं चाहिए या वो आई गेट इट, बट चलो ठीक है, आप जैसे ये एक्टिविटी बहुत टाइम से कर रहे हो, कितना टाइम हो गया आपको भी कंटेंट पोस्ट करते हुए रिसेंट में? अभी ऑन एंड ऑफ चल रहा है. ऑन एंड ऑफ चल रहा है. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे आई कैन सी कि चलो ये तो पोजीशन के बारे में तो इस पर तो लाइक आ ही जाता है. अब यहाँ पर जैसे आपके पास 3 लाइक्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 2 लाइक्स है, और यहाँ पे 1 1 5. तो ये 5 देखने से कुछ अच्छा लगा आपको कि हाँ यार चलो 5 लाइक आए हैं तो लोग कम से कम लाइक कर रहे हैं चीजों को, मेरे कंटेंट को, या नहीं? टेक्निकली बोलूँ तो मेरे को अच्छा बुरा इसमें मेरे को समझ. सो बेसिकली एज आई सेड कि मैं इसको देख ही नहीं रहा, तो देख ही नहीं रहा. चलो मैं ठीक है. ठीक है, मैं गॉट इट. चलो कैंसिल ठीक है. क्योंकि अभी अभी के लिए एक चीज तो क्लियर है कि आप ये चीज नहीं देख रहे हो. मगर आई टेल यू वन थिंग कि जैसे अभी आप ऑन ऑफ में यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आई टेल यू वन थिंग कि इसमें क्या है. ये जो 5 लाइक्स है ना, दीज लाइक्स आर नॉट गोना गिव यू द मनी, हम्म. है ना. तो ये चीज अगर आपको पता है तो इट्स गुड, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि जो लाइक बेसिकली होता है कंटेंट जो लोग करते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट गोना गिव यू द मनी. हम्म. रेवेन्यू लाइक कमेंट से कभी नहीं आता. ट्रू. रेवेन्यू आता है इनबाउंड लीड से. ठीक है. ट्रू. उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा 2 चीजें जो वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. ये चाहो तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, बट जस्ट टू टेल यू कि द मोमेंट यू राइट कंटेंट, पीपल सी यू. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि आई हैव गॉट 366 प्रोफाइल व्यूज. ठीक है. तो नाउ यू शुड आस्क योरसेल्फ कि whenever I write content and whenever people see my profile, am I able to convert them? क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है. ठीक है. अब ट्रैफिक आपके लैंडिंग पेज पर आ रहा है. एंड व्हाट इज योर लैंडिंग पेज? योर लैंडिंग पेज इज नॉट योर वेबसाइट, योर लैंडिंग पेज इज योर लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल. हम्म. ठीक राइट. है. तो जब ट्रैफिक आपके लैंडिंग पेज पर आ रहा है, तो क्या ट्रैफिक को पूरा मैकेनिज्म क्लियर है कि व्हाट दिस लैंडिंग पेज इज अबाउट, और आर यू बेसिकली कंफ्यूजिंग देम इन डिफरेंट सेक्शंस? वही हो रहा है अभी आपके लिंक्डइन पेज के ऊपर.
ठीक है, दैट इज वन थिंग। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर मेरे को 400 ट्रैफिक भी अगर मेरे को महीने का आ रहा है, तो मुझे ये बस पता होना चाहिए कि मैं 400 में से क्या कम से कम 10 लोगों के साथ भी क्या मैं अपनी कॉल एंगेज करवा पा रहा हूँ, स्टार्ट करवा पा रहा हूँ या नहीं करवा पा रहा। मतलब 10 के साथ मेरी कन्वर्सेशन तो स्टार्ट हो, क्योंकि अब 400 ट्रैफिक में 10%, तो ये वार्म लीड्स हो गए ना मेरे लिए। तो वार्म लीड्स में 10% लाना इज वेरी इजी, 10 से 20% लाना। तो 10 से 20%, आपका 400 का हो गया 40। ठीक है, 40 से 80। अब 40 से 80 में से अगर मेरी 10 से भी बातचीत स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब मेरे में ही कहीं प्रॉब्लम है, मेरी प्रोफाइल में ही प्रॉब्लम है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज वेन एवर यू पोस्ट कॉन्टेंट। ठीक है, कॉन्टेंट पोस्ट करने के बाद यहाँ पे देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अच्छा, ये तो मैं अपना कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, दिस इज नॉट माय कंटेंट। ठीक है, तो ये तो मेरा ही है, बट आई डोंट वांट टू शो यू दिस वन। लेट्स से आई वांट टू शो यू दिस वन। ठीक है, सो फॉर एवरी पोस्ट यू गेट impressions. Have you राइट। have you ever seen this? यस। ठीक है, तो डू यू पे अटेंशन टू दीज एनालिटिक्स? नहीं, अभी इतना मैं खुद के प्रोफाइल पे नहीं कर रहा कुछ। चलो ठीक है। सो अब ये करना वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। क्यों करना, मैं आपको रीजन बताता हूँ। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन व्यू एनालिटिक्स, ठीक है, ये आपको हर पोस्ट के लिए करना है। ठीक है, द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दिस, आपको यहाँ पे शॉल डेमोग्राफिक्स में व्हेन यू विल क्लिक ऑन इट, तो लिंक्डइन ये बताता है कि आपका कंटेंट किसने देखा। ठीक ओके। है, तो यहाँ पे आप टारगेट करना चाहते हो फाउंडर्स को, और लेट राइट। सपोज आपका कंटेंट देख रहा है कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम्म। तो जो मतलब आप लिंक्डइन क्या कर रहा है, आप कंटेंट लिख रहे हो, और लिंक्डइन ने आपका कंटेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पुश कर दिया। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंटेंट चला गया, तो फाउंडर तो कभी कंटेंट देख ही नहीं पाएगा ना, और जब फाउंडर कंटेंट देखेगा नहीं, उसके पास आपकी प्रोफाइल की रीच नहीं जाएगी, तो इनबाउंड लीड्स आएगी नहीं ना कभी भी हमें। राइट। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इज कि हु इज व्यूइंग योर कंटेंट। सो दिस इज ओके। वेयर यू नीड टू करेक्ट दिस अप। अगर यहाँ पे डेटा गलत आ रहा है, तो जस्ट करेक्ट दिस अप। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कंपनी साइज। पता लगे कि आपका कंटेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देख रहे हैं फ्रॉम दिस कंपनी। अब इस कंपनी को आप मार्केटिंग सर्विसेज सेल कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द इन हाउस टीम। राइट। योर size, your target company size is 11 to 50, 1 to 10, and 51 to 200. अब ये सीक्वेंस में होना चाहिए कि 1 टू 10 का मेजोरिटी होना चाहिए, 11 टू 50 का सेकंड में आ जाए, और ये थर्ड में आ जाए। ठीक है, 11 टू 50 एंड 1 टू 10 में आप शफल कर सकते हो, मगर ये वाला आपका अगर प्राइमरी में जा रहा है, तो इट्स अगेन अ बिट प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि उस कंपनी के पास भी अपनी इन हाउस टीम हो। ओके। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज लोकेशन। आपको टारगेट चाहिए दैट आई शुड गेट क्लाइंट फ्रॉम यूएसए, कनाडा एंड जर्मनी, दैट इज व्हाट यू हैव मेंशन्ड। ठीक है, मगर आपके व्यूज आ रहे हैं दिल्ली से या फिर बेंगलुरु से, या मतलब बेसिकली इंडिया से, तो मतलब लेकिन आपका कंटेंट तो यूएस के लोगों को दिखाई नहीं रहा, जब यूएस के लोग देख ही नहीं रहे, क्योंकि अगर आपका कंटेंट दिल्ली के लोग देख रहे हो और वो फाउंडर्स हैं, तो मतलब दिल्ली के फाउंडर्स आर वाचिंग योर कंटेंट, नॉट यूएस के फाउंडर्स। तो जब आपका कंटेंट वहां पहुंचेगा ही नहीं, तो कोई आपकी प्रोफाइल को दिखेगा नहीं, प्रोफाइल पे कोई नहीं आएगा, तो इनबाउंड लीड्स नहीं आएगी, इनबाउंड लीड्स नहीं आएगी, तो देयर इज नो बिजनेस दैट यू विल गेट फ्रॉम लिंक्डइन। Get it? So this is the second thing that you need to. First, you need to work on your profile messaging. That is very very important part. ठीक है, ये बहुत मैटर करता है आपका प्रोफाइल इस समय। क्या आप, मतलब अगर आप समझा नहीं पा रहे ना विद इन जस्ट 3 seconds कि व्हाट योर प्रोफाइल इज ऑल अबाउट, तो नोबडी इज गोना टॉक टू यू। ठीक है, अगर आप मेरी प्रोफाइल देखो, आई हैव लाइक 2 LinkedIn profiles right now with the same name, with the same everything. So this LinkedIn profile is where I'm helping that coaches automate the stuff. Now just look at the headline and just look at my banner. Isn't it telling the same thing? राइट। है ना? और अगर आप स्क्रॉल भी करोगे, तो आपको अबाउट सेक्शन में भी आपको बिना क्लिक करे यू विल गेट द सेम आइडिया। अगर आप थोड़ा सा कंटेंट पढ़ो, सर्विसेज, टॉप स्किल्स, एवरीथिंग इज अलाइन with what I want to sell to my ICP. राइट। राइट, और ये चीज आपके में मेरे को थोड़ी सी वीक लगी। सो टेल अपफ्रंट व्हाट यू कैन डिलीवर, व्हाट यू कांट डिलीवर, for which client, for which category of client you want to work with. Be very specific about it. जैसे मैंने यहाँ पे अपना बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है, that I help establish coaches automate scale, क्योंकि मुझे पता है ना ऑटोमेशन में यार बडिंग कोचेस नहीं आ सकते मेरे। ओवर हियर ओनली ऑटोमेटेड कोचेस विल हेल्प अस आउट, है ना? तो ये सब चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी। तो प्रोफाइल मैसेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन कम्स योर पोस्ट कंटेंट दैट यू आर डूइंग।
ठीक है। और उसके बाद आता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर थिंग दैट यू आर डूइंग ऑन लिंक्डइन राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम पोस्टिंग कंटेंट। नहीं। चलो, अब अपने कंटेंट को ना देखो, एक तो तरीका होता है कि आप कंटेंट पोस्ट करते रहो, ठीक है। और हम्म। इसमें यू डोंट हैव टू पोस्ट कंटेंट एवरी अदर डे। आपने, मुझे नहीं पता आपने ये कहीं पे सुना या नहीं सुना, मगर बहुत से लिंक्डइन गुरुज हैं यूट्यूब के ऊपर जो ये कहते हैं दैट यू शुड पोस्ट कंटेंट एवरी अदर डे, ठीक है। हम्म। अब यार एज अ फाउंडर, एज एन एजेंसी ओनर, मैं इतना टाइम अपने लिंक्डइन पे नहीं लगा सकता दैट आई गो राइट इट एंड देन आई पोस्ट इट, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम्म। प्लस लिंक्डइन एल्गोरिथम डजंट वर्क लाइक दैट। If you are a creator on LinkedIn, then you need to post content daily. If you are not a creator, then you don't need to. ठीक है। राइट। यू जस्ट पोस्ट कंटेंट बट स्ट्रेटेजिकली। अब स्ट्रेटेजिकली कैसे कंटेंट पोस्ट करना है, आई जस्ट शो यू दैट पार्ट फर्स्ट। आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस funnel called tofu mofu bofu, right? यस। Perfect. So what we usually do is for all the clients that we have, ठीक है, मैं अभी आपको ये कुछ नहीं सेल कर रहा, I'm just telling you a method कि whenever you want to spend some time on LinkedIn, right? Make sure that you divide your content into this funnel of tofu, mofu and bofu. Don't post randomly. ठीक है। एक आप कंटेंट कैलेंडर बनाओ, उस कंटेंट कैलेंडर को आप पूरा मंथली के लिए फॉलो करो। डोंट पोस्ट डेली, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है बेसिकली कि टॉप ऑफ द फनल कंटेंट से अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर आईसीपी। हम्म। मिडल ऑफ द फनल से टॉक अबाउट द प्रॉब्लम दैट दे फेस, और सीधा प्रॉब्लम की बात करो यार। जैसे आपके जो जो आपकी आईसीपी है वो फाउंडर्स हैं, और प्लस जो आपकी सर्विसेज हैं वो एसईओ है, प्लस आप सैस में भी डील करते हो, ठीक है। यस। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक छोटा सा, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं। हम्म, जैसे ये था मेरा हाउ टू डू एसईओ फॉर सैस कंपनीज इन 2025, ठीक है। ये 9 मिनट की मेरी वीडियो है, क्योंकि मैंने सैस कंपनी के साथ काफी काम किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एग्जैक्ट मेथड बता दिया कि आपको क्या सैस कंपनीज के लिए एसईओ करने के लिए वो क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके। एंड यू वॉन्ट इवन बिलीव, इस पे आई आई हैव व्यू समवेयर 810, राइट। मगर जो मेरे को इससे कन्वर्जन आई दैट इज समवेयर ऑन 40%। ओके। क्योंकि ये 810 व्यूज में ये वो लोग हैं, या तो वो सैस ओनर्स होंगे या फिर वो मार्केटर्स होंगे जो एसईओ कर रहे हैं सैस का, राइट। तो सीधा टू द पॉइंट वो मतलब क्वांटिटी आई है मेरे पास। तो ये क्वालिटी व्यूज है। और ये लोग मेरे लिंक्डइन पर आए एंड देन दे आस्क्ड मी कि मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि रोहन दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो व्हाई आई एम शोइंग यू दिस पार्ट, क्योंकि मोफो के अंदर यू नीड टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट योर आईसीपी इज फेसिंग। अब आपको पता है कि अगर आप एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो सैस इंडस्ट्री के लिए, तो आपको पता है कि सैस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस समय, किसी भी 2026 के अंदर, ठीक है। वही प्रॉब्लम आपको बात करनी है मोफो में, ठीक है। ओके। और नेक्स्ट। उसका सोल्यूशन भी देना है आपको बॉटम ऑफ द फनल के अंदर। सो गिव द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन बता दिया, एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी करके दिखा दी कि मैंने क्या किया जिससे मुझे क्या बेनिफिट मिला। अब इससे होगा क्या कि देखो, current date पे we don't make revenue on the basis of advice that we give, ठीक है। क्योंकि परप्लेक्सिटी सबके पास है, चैट जीपीटी सबके पास है, एवरीबडी कैन यूज दैट, ठीक है। क्लाइंट नहीं करते ना, हमें पता है। मगर अगर आप चैट जीपीटी पे जाओगे और मतलब परप्लेक्सिटी पे जाओगे, आप बोलोगे कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, इंटरनेट पे जा रिसर्च करो, मेरे को बता कि कोई केस स्टडी पब्लिश है ऐसी। परप्लेक्सिटी आपको कहीं ना कहीं से केस स्टडी निकाल के दे देगा सेम, सिमिलर, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस शोज कि सोल्यूशन सबके पास है, मगर एग्जीक्यूशन पे प्रॉब्लम है सबको। या तो उनके पास टीम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। जैसे अब आपकी आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको पता है कि आपको लिंक्डइन पे अगर आप एक्टिव हो जाओगे स्ट्रेटेजिकली तो आपको लीड आनी स्टार्ट हो जाएगी, यू नो दिस, बट स्टिल यू आर नॉट एक्टिव ऑन लिंक्डइन। रीजन, एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं है ना हमारे पास। तो अब किसी को एडवाइस नहीं चाहिए, सबको बस ये जानना है कि क्या आप मेरा काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो द मोमेंट यू गिव द सॉल्यूशन टू योर आईसीपी, ठीक है, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा, और समझेंगे कि आपको बहुत कुछ आता है, वो खुद एग्जीक्यूट करेंगे। मैं कह रहा हूँ 100 में से अगर आपने 100 में से 100 लोगों को एडवाइस दी,
ठीक है। उसमें से 80 लोग तो ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, वो बेसिकली यार वो बस अपनी एडवाइस अपनी जेब में डाल के भूल जाते हैं। उफ। जैसे आप और मैं, हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई रील अच्छी लगी, बहुत बढ़िया रील लगी, उसको सेव कर देंगे कि भाई कल देखेंगे इसको, और वो कल कभी नहीं आता। आपका और मेरा, जैसे मेरा आपके साथ भी ऐसा होगा कि व्हाट्सएप पे आपने एक पर्सनल ग्रुप बना रखा होगा अपना, अपने नंबर का खाली, है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टफ वहां पे शेयर करते रहते हो। साल भर क्या पहले उसमें शेयर किया था किसी को कुछ याद नहीं है, मेरे को भी याद नहीं है यार। आई एक्चुअली डू दिस। मैं भी करता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, सब करते हैं। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें बस सॉल्यूशन दे दो, हम जेब में रखेंगे, और भूलना चाहते हैं उसको। ये लोग को आपको सर्विस सेल नहीं करनी है, फॉरगेट अबाउट देम। इन 80 को हम्म। सेल नहीं करना, आपने किसको सेल करना है, आपने सेल करना है उन 20% लोगों को जो आपके एडवाइस को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। अब उन 20% लोगों में से मतलब 20 लोगों में से मैं कह रहा हूँ 5 लोग ऐसे होंगे जो आपकी एडवाइस को फॉलो करते हुए रिजल्ट ले आएंगे, हम्म। ठीक है। उन 5 लोगों को आपको यूज करना है टेस्टिमोनियल। बाकी बचे 15 लोगों को आपको अपनी सर्विस सेल करनी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके एडवाइस को फॉलो करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे, मगर ये फंस जाएंगे ड्यू टू मल्टीपल रीजन, या तो टाइम नहीं है, या एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, एफर्ट्स नहीं डाल पाए, मतलब फलाना ढिमकाना चीजें की वजह से ये अटक जाएंगे। और यही 15 लोग आपकी आपसे सर्विस बाय करेंगे। तो अपना टाइम हमें 80 लोगों पे वेस्ट नहीं करना, ना हमें अपना टाइम उन 5 लोगों पे वेस्ट करना है, हमें अपना टाइम सिर्फ उन लोगों पे इन्वेस्ट करना है जो लोग एग्जीक्यूट करके फंस गए हैं। और ये तभी हो हम्म। पाएगा जब आप ये कंटेंट पूरा स्ट्रेटेजिकली पोस्ट करोगे, अंडरस्टूड। ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। इसमें और व्हाट एल्स आई वांट टू शो यू। ठीक है। सो अभी तक यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम फॉर मी? नहीं। ठीक है। इसमें द अनदर थिंग दैट यू नीड टू डू इज एंगेजमेंट। आप अपनी प्रोफाइल पे कंटेंट तो पोस्ट कर लोगे यार, बट वो कंटेंट पोस्ट करने के बाद जो मेन रीच आपको चाहिए, दैट विल कम व्हेन यू विल एंगेज विद योर आईसीपी, ठीक है। तो आईसीपी के साथ एंगेज करने के लिए अभी डू यू लाइक आउटरीच ऑन लिंक्डइन? मेरी टीम करती है, वो वही लोग यूज करते, पोस्ट में करता हूँ। अच्छा, तो आपको आउटरीच में कितना रिस्पॉन्स आ रहा है अभी? आ रहे हैं, और मेरे को एक्चुअली रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा, बट हाँ मैं देख रहा हूँ, मैसेजेस कुछ कुछ आते रहते हैं। कुछ कुछ आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोसेस पता है कि व्हाट दे डू? हाँ, वो सेल्स नेविगेटर का यूज करके उन्होंने फिल्टर आउट करके वहां से वो करते हैं। तो वो मैं मतलब उन्होंने वहां से आईसीपी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना ली, एंड देन दे सेंड दम फर्स्ट इंट्रो में मतलब इंट्रो मैसेज उन्हें भेज दिया, फिर उसके बाद फॉलो अप भेज दिया, फॉलो अप 2 भेज दिया, दिस इज व्हाट दे आर हम्म। डूइंग, ठीक है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, आप स्ट्रेटेजी ना ये वाली यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी। हम्म। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाई, आइडेंटिफाई किया, उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, मतलब कनेक्शन यहाँ पे आपका हो गया कि डायरेक्ट सेल्स से मेरे से आप डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। तो हम्म। उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, आपने उनको अपना सेल्स मैसेज भेज दिया, और फिर आप वेट करते हो कि एंटिसिपेट करते हो कि सेल्स क्लोज हो जाए, यही यही हो रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी हम्म। वर्क करती थी 2020 के अंदर, ठीक ओके। है। अब ये चीज वर्क नहीं करती है, क्योंकि अब एवरीवन इज स्मार्ट ना यार, मतलब जो आप कर रहे हो वो मेरे को पहले से ही पता है। तो ट्रू। वो मेरे को पता है, तो मतलब वो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को सब चीजें पता है, मगर अगर मेरे को भी पता है तो सोचो कितने लोगों को पता होगा। और मैंने आपको वही। पहले बता दिया आपका फेस पढ़ के कि आप यही स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, ठीक है। हम्म। तो ये स्ट्रेटेजी वर्क करती थी 2020 के अंदर, अब जो स्ट्रेटेजी वर्क करती है वो करती है ये, ओके। ठीक है। इट्स अ 9 स्टेप फ्रेमवर्क, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट्स अ 9 स्टेप फ्रेमवर्क प्रॉपर, ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क में है करना वही है, मगर थोड़ा सा और स्ट्रेटेजिकली करना है। अब वो कैसे स्ट्रेटेजिकली करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ओके। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज कि जब आपके पास डेटा आ गया कि आपको किसको रीच आउट करना है, ठीक है, तो आपके पास ये 5 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई, नेम, रोल, कंपनी, प्रोफाइल लिंक एंड पोजीशन, ठीक है। ठीक है। नाउ यू क्लासिफाई देम इनटू द डिफरेंट टीयर कैटेगरीज, आइदर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, वो आप फिल्ट्रेशन और अपने प्रेफरेंस के बेसिस पे यू क्लासिफाई देम कि भाई मेरे को इसको इसमें क्लासिफाई करना और इसमें क्लासिफाई करना, ओके। ठीक है। देन बिफोर यू रीच आउट टू देम, पहले उनके दरवाजे पर ठक ठक करो,
वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मैं तेरे घर में घुसने वाला हूँ तो जान तो सही मैं हूँ कौन, ठीक है। सीधे घर में मत घुसो। अब उसको करने के लिए टच वन एंड टच टू। टच वन इज बेसिकली लाइक कि उनके रीसेंट पोस्ट पे जाकर लाइक लाइक कर दिया, टच टू इज कि उनके रीसेंट पोस्ट पे जाकर कमेंट कर दिया। ठीक है। अब इससे होगा क्या कि उनको बार नोटिफिकेशन मिलेगी कि यार सूरज ने मेरा आज ये वाला पोस्ट लाइक किया, सूरज ने मेरा आज ये वाला मतलब मेरी इस प्रोफाइल पे मेरे इस पोस्ट पे कमेंट किया। तो पहले दिन नोटिफिकेशन मिली, 24 घंटे बाद फिर उसको नोटिफिकेशन मिली, अब वो ये कह रहा है यार ये सूरज है कौन। और अब होता है रेडी टू डीएम कि हाँ भाई अब हम इसको डीएम कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। अब जब आप उसको मैसेज सेंड करोगे, ठीक है, बाय यूजिंग द डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, मैं स्क्रिप्ट्स दिखाता हूँ। अब एकदम से उसके माइंड में जाएगा यार सूरज ने लाइक भी किया था, कमेंट भी किया था, अब ये मेरे डीएम में भी आ गया, मैं एटलीस्ट इसको चेक तो करूं, ये है कौन और ये करना क्या चाह रहा है। दिस इज वेयर योर रिप्लाई रेट विल गेट इंक्रीज। हम्म। क्योंकि अब आप अपने प्रोस्पेक्ट को कोल्ड आउटरीच ना करके आप उसको वार्म आउटरीच कर रहे हो, और आप उसको पुश कर रहे हो कि वो आपको देखे कि हु यू आर एंड व्हाट इज योर मोटिव। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, मैसेजेस में या आपकी प्रोफाइल में जो वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज नॉट शुड बी वन वे बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए आपका और सामने वाले पर्सन का। तो आप अपनी प्रोफाइल में जो इस समय एक और मिस्टेक कर रहे हो, दैट इज वांट टू जनरेट लीड्स व्हाइल यू स्लीप, ये साफ दिखा रहा है कि आप इस समय वन वे बेनिफिट करना चाह रहे हो, ठीक है। हम्म। म्यूचुअल बेनिफिट दिखाओ अपने आईसीपी को कि भाई मेरी सर्विसेज से तेरे को ये बेनिफिट मिलेगा, ये तेरा ड्रीम आउटकम है, व्हाट यू वांट टू अचीव, दैट इज व्हाट यू वांट टू शोकेस, ओके। ठीक है। तो ये सब चीजें ये आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आती है आपकी ये स्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी फॉलो कर रखी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पूरी स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है कि रीएक्टिवेशन में मेरे पास ये 5 मैसेज है, तो ये 5 मैसेज चले जाएंगे। पोजिशनिंग में मेरे पास ये मैसेज आ गए, वैल्यू ड्रॉप में ये आ गए, तो मेरे पास हर सिनेरियो के लिए एक मैसेज है। फॉर एवरी सिनेरियो आई हैव दिस मैसेज, ठीक है। ओके। अब आप तो कर रहे हो सारा मैनुअल, ठीक है। जितना भी मैंने अभी तक आपको प्रोसेस दिखाया है, माई प्रोसेस इज कंप्लीट ऑटोमेटेड। मैं कोई काम अपने हिसाब से नहीं कर रहा क्योंकि आई हैव मेड ऑल द थिंग्स ऑटोमेटेड, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, हम्म, इसके लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड दीज 6 automations ओनली फॉर लिंक्डइन। ओके। जितना भी मैंने आपको सब बताया वो सारा काम मेरा अभी ऑटोमेशन पे वर्क कर रहा है। एवरीथिंग फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, ये पूरा कंटेंट कैलेंडर मेरे 1 महीने का अकॉर्डिंग टू माई आईसीपी, अकॉर्डिंग टू माई सर्विसेज इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, ठीक ओके। है। और सिर्फ ये नहीं, मतलब ये फनल वनल ये सब खुद डिसाइड करता है कि क्या फनल में जाना चाहिए। तो मैंने उसको पूरा फीड कर रखा है कि भाई 60% मेरे को टॉप ऑफ द फनल चाहिए, 30% मेरे को मोफू चाहिए और 10% मेरे को बोफू चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो उसके साथ मैंने पूरी अपनी जर्नी शेयर कर रखी है, मैंने ट्रेन कर रखा है अपने सारे जीपीटीज को। तो और वो जीपीटीज में आपको एनीटाइम तो पता ही होगा, राइट। यस। तो एनीटाइम में मैंने ये सारे फनल्स अपने कस्टमाइज बनाए हुए हैं, ठीक है। एक ओके। सिमिलर मैंने एक बनाया हुआ है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपने कितने न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब किया हुआ है। बहुत कम करता हूँ बट हाँ फ्यू, फ्यू। ज़्यादा नहीं आ करें। और जो आपने जब सब्सक्राइब किया था तो आपने क्यों सब्सक्राइब किया था, क्योंकि आपको लगा कि वो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा। हाँ उस, हाँ। और अब वो आपके जो न्यूज़ लेटर है वो आपके जीमेल में पड़े रहते हैं और आप पढ़ते नहीं हो। नहीं देखता हूँ। नहीं देखते, मैं बता देता हूँ। मगर जब भी आप उन्हें ओपन करोगे कभी भी तो आप देखना कि उसमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है ना। हम्म। अब आपने सब्सक्राइब किया, आपने टाइम लगाया, आपने ढूंढा, मगर वो टाइम की तो वैल्यू आपने जीरो कर दी। मैंने क्या किया, मैंने उसी टाइम को यूटिलाइज कर दिया। तो ओके। मैंने एक ऑटोमेशन बना दी, दिस ऑटोमेशन। ये क्या करती है, ये मेरे जीमेल पे जाती है, ठीक है। पर्टिकुलर न्यूज़ लेटर को जो जो मुझे अच्छा लगता है, उस जब जब वो न्यूज़ लेटर मेरे पास आता है ये उसको ट्रिगर कर देती है। वो न्यूज़लेटर आया, इसने ट्रिगर किया, इसने उस न्यूज़लेटर में से पूरा न्यूज़लेटर पढ़ा, वहां से इंफॉर्मेशन निकाली, ओके। और उस इंफॉर्मेशन निकालने के बाद इसने क्लासिफाई किया कि ये मेरे टॉप ऑफ द फनल में जाएगा, मोफो में जाएगा या बोफो में जाएगा। कंटेंट बनाया, कंटेंट बनाने के बाद इसने मेरे को, ये मेरे टेलीग्राम पे मैंने इसका अप्रूवल लगाया हुआ है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ओके। ये मेरे टेलीग्राम पे मेरे को नोटिफिकेशन भेजता है कि रोहन मैंने आपके लिए कंटेंट और इमेज बनाई है, ठीक है। एक मिनट।
तो इसने मेरे को बोला कि रोहन, मैंने आपके लिए ये कंटेंट लिखा है और मैंने आपके लिए ये इमेज बनाई है। ठीक है। ठीक है। फिर ये मेरे से पूछता है कि आप रिस्पॉन्ड करो। अभी तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि एक्सपायर हो गया लिंक। मैं यूजुअली 200 पे कर लेता हूँ, तो मेरे मेरे बिना परमिशन के पोस्ट नहीं होता बेसिकली कंटेंट। अब मैं रिस्पॉन्ड पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे ये मेरे से पूछेगा तीन चीजें। डू यू अप्रूव इट, डू यू रिजेक्ट इट, और यू हैव सम फीडबैक। अप्रूव कर ओके। दूंगा तो वो मेरे लिंक्डइन पे पोस्ट हो जाएगा, रिजेक्ट कर दूंगा तो वो पोस्ट नहीं होगा। और अगर मेरे को कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मेरे को इमेज पसंद नहीं आई, ठीक है, या फिर मेरे को कंटेंट पसंद नहीं आया, तो मैं उसको अपना फीडबैक दूंगा, वो उस फीडबैक को पढ़ के दोबारा से चेंजेस करके मेरे को आउटपुट देगा। और फिर वो आउटपुट पे अगेन तीन ऑप्शन, अप्रूव, रिजेक्ट और फीडबैक। एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड, कंटेंट आपका पोस्ट हो जाएगा आपके लिंक्डइन के ऊपर। अब ये सोचो कि ये कंटेंट जो ऑलरेडी न्यूज़लेटर पे रिसर्च्ड कंटेंट है वो यहाँ पे यूज हो गया। तो आप सोचो कि आपने कितने न्यूज़लेटर वैसे सब्सक्राइब कर रखा है, आपको नेक्स्ट टाइम से कंटेंट लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप न्यूज़लेटर से कंटेंट ले रहे हो। ये वाला जो ऑटोमेशन है, दिस ऑटोमेशन में भी आपको कंटेंट नहीं लिखना, इसको आपको बस एक बार ट्रेन करना है। ये फिर आपके आईसीपी के अकॉर्डिंग आपको बता देगा कि कब आपको कैरोसेल पोस्ट करना है, कब आपको स्टैटिक इमेजेस डालनी है। ठीक है। दिस कंटेंट लिंक्डइन, और ये आपका जो ऑटोमेशन है विच इज दिस ऑटोमेशन, न्यूज़लेटर से आने, ठीक है, ये ऑटोमेशन आपकी हेल्प करेगी कि आपके न्यूज़लेटर से कंटेंट निकालने में। ओके। ठीक है। फिर हमारे पास एक ऑटोमेशन है विच इज पोस्ट कमेंटर्स। आप जैसे सपोज करो आपने मुझे बताया कि आप सर्विसेज सेल करते हो, लिंक्डइन मैनेजमेंट, एसईओ, ठीक है। अब लिंक्डइन मैनेजमेंट में अगर मैं लिंक्डइन पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग गाइड। ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं यहाँ पे ना कुछ पोस्ट ओपन करूंगा अपनी। ठीक है। अपनी नहीं, द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू ग्रो देयर पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन। अंडरस्टूड। ठीक है। तो ऐसी कुछ पोस्ट ढूंढते हैं पहले, तो जो हमें अच्छी लगे, जिसपे मेरे को हाँ लगे कि हाँ भाई ये थोड़ी सी पोस्ट अच्छी हो सकती है। लेट्स जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब ये देखते हैं। योर पर्सनल ब्रांड डजंट नीड टू बी कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट पीपल ओवरथिंक लिंक्डइन। ठीक है। शी इज पूनम रोगाड़े एंड शी हैज गॉट 17 कमेंट्स। ठीक अब है। इस पोस्ट पे जिन लोगों ने एंगेज किया हो, क्या ये वो लोग नहीं होंगे जिनको कंसर्न होगा कि हमें को अपना लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड ग्रो करना है? राइट। तो अब ये 17 लोग जिन्होंने कमेंट किया है, मतलब ये वो लोग हैं जिनको सर्विसेज चाहिए, हम्म। जिनको लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग ग्रो करनी है। तभी तो ये लोग यहाँ पे एंगेज कर रहे हैं, या तो ये कर रहे हैं ऑलरेडी, या ये स्ट्रगल कर रहे हैं। हम्म। है ना? तो क्यों ना हम अपनी सर्विस इन्हीं लोगों को सेल कर दें। ओके। वार्म ऑडियंस मिल गई आपको पहली बार में ही। हम्म। ठीक है। अब इस वार्म ऑडियंस को जब आप स्क्रैप करने जाओगे एक एक प्रोफाइल को, तो टाइम जाएगा, हम्म। क्योंकि आपको एक प्रोफाइल पहले ओपन करनी है, फिर आप उसका नेम, ईमेल एड्रेस, वो सब कॉपी करोगे। यहीं पे हम्म। मेरी ये वाली ऑटोमेशन आ जाती है, विच इज दिस ऑटोमेशन, दिस वन, लिंक्डइन पोस्ट कमेंटर्स। ओके। ये ऑटोमेशन क्या करती है, मैं आपको इसका भी यूज केस दिखा देता हूँ। ये ऑटोमेशन क्या करेगी, हर उस जिस भी पर्सन ने इस जो ये पोस्ट थी हमारी, सॉरी, जो ये पोस्ट थी जो हमने यहाँ पे निकाली थी, सपोज करो ये पोस्ट है, तो जिन हम्म। लोगों ने इस पोस्ट के ऊपर कमेंट किया होगा ये उसको स्क्रैप कर देगी। ओके। ठीक है। तो ये ऑटोमेशन कैसे वर्क करती है, लिंक कमेंट एक्टिविटी, एंड सो यू गेट द नेम, यू गेट द प्रोफाइल यूआरएल, यू गेट द कमेंट। तो ओके। उस पर्सन का नेम, उस पर्सन का यूआरएल, उस पर्सन का कमेंट जो उसने उस पोस्ट पे किया था, एंड उस और कौन सी वो बेसिकली पोस्ट थी। तो ऐसे करके आप एक बार में पूरा अपनी इंफॉर्मेशन, जितने भी आपको मतलब जितने भी कमेंट्स उस पर्टिकुलर पोस्ट पे आप निकाल सकते हो। ठीक है। ओके। इसके लिए एक टूल आता है, सोशल लिस्टिंग टूल, में भी आपको पता हो, ऑटोलेंस, फैंटम ओपन। बस्टर, हाँ। ये सब एक्सपेंसिव टूल्स हैं, राइट। मगर विद ये ऑटोमेशन उन उन टूल्स को यूज ही नहीं करती, तो आपको बेसिकली यू डोंट हैव टू पे एनी मनी। आप नेग्लिजिबल अमाउंट में यू कैन स्केप डाउन द कंप्लीट प्रोफाइल। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद मतलब मल्टीपल ऑटोमेशन से, अब जैसे अब ये है, अब सपोज करते कि आपके पास डेटा आ गया। ठीक है। अब ये डेटा आ गया हमारे पास। अब मैं इनको रीच आउट करने से पहले प्रॉब्लम ये भी है ना कि यार ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इसमें से एक्टिव ही ना हो लिंक्डइन के ऊपर। ट्रू। तो मैं उनको भी फिल्टर आउट कर लेता हूँ। अब वो कैसे मैं फिल्टर आउट करता हूँ, उसको फिल्टर आउट करने के लिए, नोट दिस वन, दिस ऑटोमेशन कम्स इन एंगेजमेंट काउंटर। ठीक है। हम्म। ये ये क्या करेगा,
लेट मी जस्ट शो यू, या मैं आपको ये इस पे दिखाता हूँ, वेट। ये क्या करेगा, हर प्रोफाइल के लिए, ठीक है, जितनी भी आप उसके लिंक्डइन प्रोफाइल्स दोगे, जो अभी आपने डेटा यहाँ से स्क्रैप किया, हर ओके। प्रोफाइल के लिए ये बता देगा कि लास्ट मंथ में, या ड्यूरेशन आप डिसाइड कर सकते हो कि उसको कितने लाइक्स आए, कितने टोटल रिएक्शंस आए। रिएक्शन से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जब भी आप किसी पोस्ट पे जाते हो तो आपके पास ना डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं। राइट। तो टोटल मींस ऑल द रिएक्शंस, ठीक है। ठीक है। लाइक मींस ओनली लाइक्स, कमेंट मींस कि कितने कमेंट किए हुए हैं। ओके। सो इससे यू कैन फिल्टर आउट कि वेदर दैट प्रोफाइल इज एक्टिव और नॉट। अब जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शौर्य यूनियाल की प्रोफाइल एक्टिव नहीं है, 4 ही लाइक हैं, तो मतलब दिस पर्सन इज नॉट एक्टिव ऑन लिंक्डइन, तो मैं इस पे अपना टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं। वान्या अग्रवाल 0, राइट। सान्या दीक्षित 0। बाकी सब में अगर आप देखो तो 10+20+, अब आप ऐसे फिल्ट्रेशन में लगा सकते हो कि भाई जिसकी ज्यादा लाइक्स है मतलब वो मोस्टली एक्टिव पर्सन होगा, जिसकी कम लाइक्स है वो लेस एक्टिव होगा। तो ऐसे करके नाउ जो हमने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाई, चाहे आप सेल्स नेविगेटर से बनाए, चाहे आप कहीं से भी बना रहे हो, ठीक है, बट अब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो डेड प्रोफाइल्स को रीच आउट करने में। सो दिस इज व्हाट यू आर अप्लाइंग मोर फिल्टरेशन, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो बाकी ऑटोमेशंस हैं, विच इज दिस वन, कमेंट ऑटोमेशन है यहाँ पर। वो कमेंट ऑटोमेशन क्या करती है बेसिकली, कि आपने उसको कहा कि ये मेरी आईसीपी है, ठीक है, ठीक है। वो आपके नहीं, आपने उसको कहा कि व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू सोशल लेसन ऑन, लेट्स से व्हेनेवर समवन राइट लिंक्डइन मैनेजमेंट गाइड, जैसे ही कोई लिंक्डइन मैनेजमेंट गाइड लिंक्डइन पर लिखे, मेरे पास नोटिफिकेशन आए और मेरा कमेंट उसकी प्रोफाइल पे पोस्ट हो जाए, ओके। ठीक है। सो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हम्म। सो आई एम सोशल लिसनिंग ऑन दीज टू कीवर्ड्स, N10 एंड एआई एजेंट्स। अब जैसे ही कोई भी एआई एजेंट्स लिखता है, क्योंकि आपकी भी ये सर्विस है राइट, जैसे कोई भी एआई एजेंट्स लिखता है, आपके पास उस पर्सन का नेम, ऑथर आ जाए, बायो आ जाए, ऑथर का लिंक आ जाए जिसने वो पोस्ट करी, और क्या पोस्ट का कंटेंट है, और वो उस पोस्ट का लिंक आ जाए। यू गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन जब जब लिंक्डइन पे कोई ये वर्ड लिखेगा एआई एजेंट्स। ओके। और उसके बाद ये बेसिकली ऑटोमेशन क्या करेगी, कंटेंट को पढ़ के, हमने इसमें ना 7 कैटेगरी ऑफ कमेंट्स फीड करे हुए हैं। एक हो गया इन्फॉर्मेटिव, एक हो गया एजुकेशनल, एक हो गया क्वेश्चनेबल, एक हो गया मिथ बस्टर, ठीक है। ऐसे करके हमने 7 कैटेगरी ऑफ कमेंट्स को पोस्ट करे हुए हैं। एंड देन ये कंटेंट को एनालाइज करके, आपकी प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करके, ये एक कमेंट लिखेगा वहां पर ठीक है। शीट में बेसिकली, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो कि भाई वो कमेंट अगर आप अप्रूव कर दोगे तो वो कमेंट पोस्ट भी हो जाएगा, आप रिजेक्ट करोगे तो वो कमेंट वहां पे रिजेक्ट, वहां पे पोस्ट नहीं होगा। ओके। तो ये मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अप्रूव और रिजेक्ट करना है, एंड देन आपका कमेंट इमीडिएटली आपके उस पर्सन के पोस्ट पे चला जाएगा। अगर आपको ये फिल्ट्रेशन नहीं लगानी तो यू कैन रिमूव इट, और इमीडिएटली जब वो कमेंट एनालाइज करेगा कि मेरे को ये कमेंट पोस्ट करना है, तो वो कमेंट वहां पे जाएगा और ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगा। तो जैसे ही किसी ने एआई एजेंट्स मेंशन किया लिंक्डइन के ऊपर, ऑटोमेशन रन हुई और पहला कमेंट आपका चला गया। ओके। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर ऑटोमेशन दैट वी हैव, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू कि, क्योंकि यू आर डूइंग द सेम स्टफ, ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड कि लिंक्डइन पे कैसे ग्रो करना है, कैसे नहीं करना है। आप बहुत चीजें मैनुअली कर रहे थे, मगर मैंने आपको यहाँ पे काफी चीजें बताई कि अगर आप इसको ऐसे ऐसे करेक्ट करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो इफ यू गेट ऑल दीज 6 ऑटोमेशन, ठीक है, तो हाउ कॉन्फिडेंट यू फील कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है, या जो आपकी रिप्लाई रेट है, इट कैन ग्रो अप, और इट विल गेट इम्प्रूव्ड। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट होगा भाई। श्योर श्योर होगा। तो यू यू बेसिकली बिलीव इन दिस, ठीक है। हम्म। नाउ आई हैव 2 थिंग्स फॉर यू, जिसमें लाइक वन ऑफ द थिंग इज डन फॉर योर सेल्फ, ठीक है, डन फॉर यू, एंड द अदर वन इज डू योर ओन, ओके। ठीक है। आपके केस में मैं अभी आपको डन फॉर यू सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपने कुछ बहुत चीजें अपने आप इम्प्लीमेंट कर रखी है, एग्जीक्यूट कर रखा है, और आपको सिर्फ एक राइट डायरेक्शन चाहिए, जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल को अभी देख के बताया, राइट। राइट। तो आई हैव अ रिकॉर्डेड कोर्स
ओके। ठीक है। उस रिकॉर्डेड कोर्स में लेट मी जस्ट शो यू व्हाट्स ऑल इंक्लूडेड। सो उसमें यू हैव दीज थ्री पिलर्स, पिलर वन, पिलर टू एंड द पिलर थ्री, विच इज प्रोस्पेक्ट इंटेलिजेंस, कि प्रोस्पेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे वार्म लिस्ट बनानी है, नॉट कोल्ड, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो वार्म लिस्ट में सारे काम एआई विल हेल्प यू आउट, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। ठीक है। प्रोस्पेक्ट टू के अंदर ऑटोमेटेड आउटरीच, क्या मैसेजिंग देना है, क्या क्या बेसिकली विनर मैसेज निकालना है, विनर टेम्पलेट निकालना है आईसीपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कैसे पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, दैट इज व्हाट यू विल बी लर्निंग इन द पिलर टू। एंड पिलर थ्री इज कन्वर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे यू विल बी लर्निंग कि कैसे आप पूरे मंथ का कंटेंट कैलेंडर, जो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया, हाउ यू कैन क्रिएट इट प्रॉपर विद स्ट्रेटेजीज। ये चैट जीपीटी नहीं है कि बस चैट जीपीटी को बोला मेरा ये प्रोफाइल है और इसके लिए मेरे को कंटेंट कैलेंडर बना दे, नो, बाय कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट डिटेल स्टफ। ठीक है। ठीक है। सो दिस इज वेयर these थ्री पिलर्स विल कम इन। अब यू विल गेट these थ्री पिलर्स जो रिकॉर्डेड कोर्स में है, जिसमें यू विल ऑल्सो बी लर्निंग की प्रोफाइल पे क्या मैसेजिंग जाएगी, हेडलाइन कैसे लिखना है, बैनर कैसा होना चाहिए, बैनर पे क्या मैसेजिंग जानी चाहिए। ठीक है। सर्विस सेक्शन में क्या जाएगा, अबाउट सेक्शन में जाएगा क्या जाएगा, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। ओके। प्लस यू विल गेट these सिक्स automations ठीक है। inside that recorded course। सो N18 का वो टेम्पलेट मिलेगा बेसिकली। परफेक्ट, पूरा टेम्पलेट। आपको सिर्फ वो जेसन इंस्टॉल करना है, और वो जेसन के बाद यू विल बी एबल टू रन दीज ऑटोमेशंस फॉर योरसेल्फ। ओके। ठीक है। सो दिस इज वेयर यू विल बी डूइंग ऑल द थिंग्स ऑन योरसेल्फ। ठीक है, तभी इसका हमने नाम रखा हुआ है डन ऑन योरसेल्फ। ठीक ठीक है। है। सो द फीस, अच्छा अब ठीक है, बिफोर आई रिवील दैट, तो डू यू बिलीव इन दिस सिस्टम, दिस कंप्लीट वन? चलेगा। चलो ठीक है। सो द कोर्स, द कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स इज 5,000 रुपीज, ओके। जिसमें यू आर गेटिंग दीज थ्री पिलर्स दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, ठीक है। prospect intelligence, automated outreach, along with these six automations, ओके। right? Plus one exclusive LinkedIn community access that is on WhatsApp. ठीक है, उसमें वी हैव एजेंसी ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, SaaS ओनर्स, एवरी अदर स्टफ इज, एवरी अदर पीपल आर देयर। ठीक है, तो यू विल गेट द एक्सेस टू दैट, आई कैन एक्चुअली शो यू दैट पार्ट। तो एज यू कैन सी दैट दिस इज माय एक्सेस, तो यहाँ पे वी कीप टॉकिंग, वी शेयर स्टफ, पीपल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देन वी गो ahead and discuss a lot of, like we do some one on one, sorry, not one on one, but a weekly live call as well। ओके। ठीक है, so this is the very very close access that you will get, so you're getting three things: one, the complete pillars, the recorded course, along with these six automations, and access to the exclusive training community। ओके। So you can train your team members as well via the help of this course, कि जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो आप प्रॉब्लम कर रहे थे यहाँ पर, तो ये ना करके अगर आप ये पूरा 9 स्टेप फॉलो यूज करोगे, तो दिस इज वेयर यू विल हेल्प, मतलब यू विल गेट द हेल्प मोस्टली। ओके। ठीक है। ठीक। सो नाउ डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, इफ यू थिंक दैट कि ठीक है ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। यार, मैं तो पहले ही बिक चुका था, अब मेरे को बेचने की जरूरत ही नहीं थी। ये मैंने पहली बार लाइन सुनी है यार, यार आई एम नाउ योर बिग फैन। तो सी, वी आर बिजनेस ओनर्स, राइट। राइट? अपने पास इतना टाइम नहीं है कि भाई ये करो वो करो। भाई लाओ, इम्प्लीमेंट करो, खत्म करो। खत्म करो, सही बात है। मैंने यार आपको ना डन फॉर यू इसलिए अभी तक नहीं बोला है, देखो रिजल्ट में आपको उसमें ज्यादा अच्छा ला सकता हूँ, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, उसमें जो मेरी अगर आप कॉल्स देखोगे यार, तो अभी हम वाइट लेवल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, जिसमें लोग हमारी ऑटोमेशन आगे अपसेल कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम काफी इस समय कॉल्स ले चुके हैं, मैं अगर आपको कॉल्स भी दिखाऊँ ना एक बार थोड़ी सी। हम्म। अब सौरभ भटनागर के भी उसमें हो ना, कम्युनिटी में? यार मैंने ना उनका फ्लेक्सी फनल्स ले रखा है सौरभ भटनागर का, तो हम्म। मगर मेरे को एलएमएस उनका जमा नहीं अभी तक। हाँ, मेरे को भी नहीं जमा, तो मैंने रिन्यू ही नहीं किया। नहीं यार, मेरा तो रिन्यू पे चल रहा है, मैं 2-3 बार उनको रिन्यू करवा चुका, मगर वो मतलब वो मेरे को मजा नहीं आया उस पे इतना। तो वो मैंने पता नहीं हमने लिया ही क्यों था, क्या रीजन था हमारा लेने का, मेरे को तो वो भी याद नहीं है।
मगर अभी हमारी जितनी फनल्स वर्क कर रही है ना वो उस पर ही वर्क कर रही हैं। हाँ ये है कि उनका लैंडिंग पेजेस का जो फास्टर प्रोसेस है वो काफी अच्छा लगा मुझे भी, मतलब। तो हाँ। जैसे ये अगर आप ये देखो तो यहाँ पे ये सारी कॉल्स हमने अभी बस मतलब इनको सबको लिंक्डइन वाली सर्विसेज ही हम यहाँ पे दे रहे हैं इन सबको, इन सब लोगों को। ओके। तो मतलब हम अपसेल में भी मतलब काफी लोग हैं जो हमारी सर्विसेज को वाइट वाइट लेवल में सेल कर रहे हैं। मेरा जो आ रहा है सर, ओके अभी स्क्रीन बंद कर दो इफ यू वांट। हाँ हाँ। हम एज अ बिजनेस ओनर बात कर लेते हैं। बिंदास बिंदास। ओके। सो मेरा क्या है कि मैं कंटेंट करता हूँ। ऑब्वियसली एआई का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। एंड रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं क्लाइंट के लिए। अभी हमारा एक लेटेस्ट क्लाइंट है जिन जो एचआर में है। ठीक है। मंथ भी नहीं हुआ है, उनका फॉलोअर वाज समवेयर अराउंड 50। उनके अभी लास्ट वीक में उनके दो तीन पोस्ट एक्चुअली वायरल गए। नाइस। तो अभी व्हाट आई वाज ट्राइंग कि ये जो N10 का अपने लैंडिंग पेज पे था ना, आई वाज लाइक भाई मैं उसको N10 के साथ में कैसे करूं। हम्म मेरे दिमाग में वो चल रहा था। एंड मेरे को इतना नहीं है कि भाई मैं रिसर्च करूं, सर्च उसको देखूं। मैंने मेक पे भी बना रखा है, मैंने ये ऑटोमेशन करके पोस्टिंग पे भी करी है, बट वो स्ट्रक्चर एंड वो सारी चीजों में मजा नहीं आया मेरे को। तो मैं ना ये कंटेंट पोस्टिंग वाला चीज मैनुअल करता हूँ। हम्म। एंड जो 9 स्टेप वाला दिखाया, हम्म। काइंड ऑफ मैं वो कर रहा हूँ। ओके परफेक्ट। तो उसमें एक दो वो चीजें हैं, जैसे कुछ टूल्स हैं, स्नो हो गया, हम्म तुम्हारा प्रॉस्प है, कैन बॉक्स है, और भी चीजें, ये सारे टूल्स में ये सारे सेटअप्स हम कर सकते हैं, राइट। तो मैंने वो किया है। सो अभी कहीं ना कहीं मेरे को रिजल्ट्स आ रहे हैं। द ओनली थिंग इज कि मैं अपने खुद के लिंक्डइन पे काम नहीं कर पा रहा। मैं समझ सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ अभी मेरे को कितना फॉलोअर का वो आ रहा है। प्रोफाइल व्यूज, एंगेजमेंट हो रही है, पहले मैनुअली करते थे, हम्म। अब मैंने उसको ऑटोमेट करा हुआ है। ओके। नॉट फॉर माई सेल्फ, क्लाइंट के लिए भी। ठीक है। क्योंकि भाई हम लोग आलसी लोग हैं। ये आपके साथ ही, ये सबके साथ है। क्लाइंट का काम कर देंगे, अपना काम नहीं करेंगे बस। हाँ हम आलसी लोग हैं, तो इसीलिए मैं वो जो देखा ना, मैं कहा यार थोड़े बहुत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं अभी। अगर मैं दिखाऊं तो मेरे कमेंट्स जा रहे, देखो कमेंट्स लाइक हो रहा है। हम्म। अच्छा ये आपने देखा ही है। ये तो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया सब कुछ। तो बेसिकली मेरे कमेंट्स इसी तरीके के जाते हैं कि सामने वाले का जो लास्ट पोस्ट होता है उसको रीड करता है, एंड देन इट क्रिएट्स अ कमेंट। तो ओके। फॉर एग्जाम्पल लाइक तो दिस। अभी आप ये मैनुअली कर रहे हो? नहीं, ऑटोमेशन। इट्स ऑन ऑटोमेशन। ओ नाइस नाइस। तो मैं लिंक्डइन मेरे फोन में नहीं है, लिंक्डइन अच्छा। लॉगिन भी नहीं किया, और ना ही मैं मेरा परफॉर्मेंस देख रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। मैंने ऑटोमेशन सेट करके छोड़ दिया ना। ओनली थिंग इज कि मैं पोस्ट नहीं कर रहा, पहली हम्म चीज। हम्म सेकेंड, व्हाट यू राइटली आइडेंटिफाइड, कि मेरा कवर पेज चेंज होना है, मेरी जो मैसेज है वो चेंज होनी है, वो चीज को मेरे को बेटर करना है। एग्रीड। तो मेरा वो पार्ट पे वीक है, मैं काम नहीं किया उस पे। मैं आपका वो पार्ट अभी 2 मिनट में इसी कॉल पे सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि आपके करंट लिंक्डइन पर मतलब जो मेरा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो क्या करेगा, वो प्रॉपर आपका लिंक्डइन रीराइट कर देगा। ओके। सो मगर अभी वो, अगर हाँ में चलो आप बताओ आप। दिस इज लाइक दिस, कि हम्म मेरे प्रोफाइल व्यूज इज गुड। हम्म द ओनली थिंग इज कि मेरे को इनबाउंड में अभी मैसेज आ रहे हैं, बट उतना नहीं। अभी इस बार आज तो कमेंट नहीं गया, वो नाइट में चलता है मेरा। और मैंने आईसीपी को ही टारगेट किया, ये ऑटोमेटिकली जा रहा है। ठीक है। सो मेरे को बहुत लोगों के नो आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, बट आ रहे हैं ओके। अभी। इसमें आप मैसेजिंग क्या सेंड कर रहे हो लोगों को? ये भी ऑटोमेटेड है, सामने वाले का अगेन पूरा प्रोफाइल रिसर्च होता है, एंड देन नहीं इट ये तो गोज आपका फॉलोअप मैसेज हो गया ना, फर्स्ट मैसेज। ऑफ मैसेज दिस। अच्छा। मैं आपको एक बात बताऊं, चलो आपको इससे रिजल्ट आ रहा है ना वैसे? इससे मेरे को आया है, मीटिंग भी बुक हुई है, एंड थोड़ा मेरे को और वो भूख जाता है ना, इम्प्रूव तो करना है बेसिकली।
इम्प्रूव करना है और थोड़ा क्वालिटी चीजें करनी है। वही, क्योंकि वो जो फर्स्ट मैसेज है ना आपका, वो फर्स्ट मैसेज में ना बेसिकली, ये बुरा मत मानना, मगर देखो यार, सब बिजनेस ओनर्स के पास ना इतना टाइम नहीं है कि वो सबके मैसेजेस देखें, क्योंकि उनको दिन में एक मैसेज तो आता नहीं है। आप मैसेज कर रहे हो तो आपके जैसे और मेरे जैसे पता नहीं 100 लोग मैसेज कर रहे होंगे। तो आपको फर्स्ट मैसेज में ना कुछ वैल्यू डालनी चाहिए, हम्म। ताकि उनको वहीं पे समझ में आ जाए कि भाई ये चीज है क्या और क्या नहीं है ये चीज, और वहीं पे वो ठीक। आपको समझ जाएगा। अब जब यार देखो, अगर कोई मेरे को ये मैसेज करता ना, हाय रोहन, आई कीप सीइंग योर कंटेंट, इट्स वेरी गुड, तो हम्म। मैं उस पर्सन के साथ कभी भी ना एंगेज करना नहीं चाहूंगा। मैं ये कहूंगा यार भाई, मैं तो कंटेंट मुझे पता है, मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो मेरा कंटेंट तो अच्छा होगा ही ना वहां पर, वरना मैं पोस्ट ही इससे। नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो हम्म। कंटेंट मेरे अप्रूवल से जा रहा है। तो राइट। अब मेरे को ये दिख गया उस मैसेज से कि भाई ये पर्सन मेरे को बटरिंग कर रहा है, और अब ये मेरे को कुछ आकर के अपनी सर्विस सेल करेगा, तो वो म्यूचुअल बेनिफिट नहीं आया ना, वन वे जो। बेनिफिट आ गया। वो चीज नहीं करनी है बस हमें। ठीक है। तो इसमें तभी मैंने आपको डन फॉर यू यहाँ पे नहीं दिया, मैंने आपको वही दिया कि आप ये खुद चीजें इंप्लीमेंट करो, वो बेटर सोल्यूशन देगा। उसमें अगर आप कहीं फंसते हो उसके बाद, देन यू कैन लाइक लेट मी नो, क्योंकि हम काफी एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पे हम उनको लीड्स और कॉल्स बुक करवा के दे रहे हैं, तो वहां पे देन वी कैन वर्क वर्क विद यू। मगर पहले आप यही एक बार एग्जीक्यूट करो, फिर इसमें वी विल सिट ओके। टुगेदर एंड देन तब उसमें देखेंगे, है ना। ठीक है, चलेगा। चलो, मैं सो आपको मेरे को ये आप लिंक भेज देना, आई मेक द पेमेंट, या मेरे को इसमें डायरेक्ट एंड कर दो। एक काम करते हैं ना यार, इसको अभी खत्म करते हैं, क्योंकि बाद में तो फिर आपसे भी रह जाएगा और मेरे से भी रह ही जाएगा। एक नहीं मिनट। भाई, मेरे काम की चीज़ों को मैं याद रखता हूँ। 1 सेकेंड, इसका हाँ। तो एक ये इस चीज़ के लिए लेके इशू हुआ। हम्म। लिंक दे सकते हो क्या? लिंक, 1 मिनट फिर रुको, मैं लिंक निकाल दूँ। अभी आपका स्कैन नहीं हो रहा है या फिर? नेट बैंकिंग होगा या फिर कार्ड? हाँ, तो इसमें कार्ड हो जाएगा ना एक्सेप्ट, आप स्कैन करो एक बार। क्रेडिट कार्ड से ये कर सकते हो? नहीं, ये आपको बेसिकली लेके जाएगा इंस्टा मोजो के ऊपर, पेमेंट गेटवे। ओके, सो बेसिकली मेरे को कैमरे से करना है। हाँ, बस आप कैमरे से इसको स्कैन कर लो, वहां पे आपको ये इंस्टा मोजो पे ले जाएगा, इंस्टा मोजो पे ही आपसे फिर वो यूपीआई कार्ड और वट पेमेंट मेथड यू वांट टू चूज, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, हो गया। तो ये डायरेक्टली वहां से आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, ये अभी आपके साथ साथ ही हो जाएगा। नो पर्सनल पेमेंट्स, या सीधा तो ऑफिशियल। फॉर एग्जाम्पल, यार हम्म। मेरे पर्सनल में वैसे भी पैसे नहीं होते यार। ये सैलरी नहीं देते को। ये सबके साथ है यार, वो क्रेडिट कार्ड्स का ऐसा धंधा बना पड़ा है कि बस उसमें ही सब चला जाता है। नहीं, मेरे को मतलब मेरा सीए मेरे को सैलरी नहीं देता यार, जो देता है वो एकदम से खत्म हो जाता अ, है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। आपको लिंक चाहिए या आपने कर दिया? नहीं नहीं, हो गया भाई। मेरे पास यार अब एक मेरे को ना यार ये शीट शेयर कर सकते हो? कौन कौन सी चीज चाहिए मैं बताओ। मांग रहा हूँ एक्चुअली। विच शीट? जो कमेंट वाला था और ये प्रॉम्प्ट्स वगैरह। आपको व्हाइट लेवल में चाहिए? जो अभी आपने मेरे को दिखाया था, वो मेरे को पर्सनल, मेरे लिए अपने अच्छा, मैंने आपको उसमें पर्सनल के लिए चाहिए, मैं अभी कर देता हूँ। मेरे को इम्प्लीमेंट करना है एक्चुअली। मैं मैं आपको, अभी आपने बैठा हूँ। पेमेंट कर, 1 मिनट, आपने पेमेंट कर दिया, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। नहीं भाई, मैं डाल रहा हूँ, कार्ड डिटेल डाल अच्छा, रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा आपने कर दिया, मेरे को यार पता नहीं अब तक नोटिफिकेशन कैसे नहीं आई। मैं आपको साथ शीट भी शेयर कर देता हूँ साथ साथ ही, नो प्रॉब्लम। आपको मैंने देना है, अपन अपना सॉर्टेड है भाई, जो अपने को काम में आ रहा है ना, तो वो उसमें हम सोचते नहीं है यार। नहीं नहीं, ये सबके साथ है। आपको बताओ यार, वो कौन कौन सी शीट चाहिए थी? एक तो आपको चाहिए होगी ये वाली, हाँ, है एक ना। वो कैलेंडर वाला भी देना यार, कंटेंट कैलेंडर वाला है ना, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है मेरा। 1 मिनट, मैं आपको इसका कॉपी बना के देता हूँ ना। हाँ। इसको डायरेक्टली आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पेमेंट हो गई है भाई, स्क्रीनशॉट भेज हाँ दो। हाँ, नहीं नहीं, आ गया यार। वही मैं कहूँ, ये तो सब ऑटोमेशन पे चलता है। आपकी ईमेल? द डिजिटल फ्रॉग हम्म। 1@gmail.com। ठीक है, एक मैंने आपको इसका एक्सेस दे दिया, और एक आपको, अच्छा इसका तो गया ना, ठीक है, लेट्स लेट्स जस्ट क्लोज इट। इसका भी आपको एक्सेस चाहिए?
इसका नहीं यार, ये तो नो। एनीवेज आप उसमें ऑटोमेशन में भी जाएगा ना। हाँ 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 हाँ। ये वाला भी नहीं चाहिए होगा फिर तो आपको। नहीं। आपको वो ट्रैकर चाहिए बेसिकली, राइट? ट्रैकर और वो कंटेंट कैलेंडर। रुको। रोहन, एक सेकंड के लिए मैं ना थोड़ा वॉशरूम जा रहा हूँ यार, प्लीज। नो वरीज, नो वरीज। हाँ, मेरा एक ना क्वेश्चन है यार, ये जो ऑटोमेशन है हम्म। एन के लिए मेरे को, या बाकी जो टूल्स हैं, एन हो गया या एपीफाई वगैरह जो भी है, उसके लिए मेरे को कितना कॉस्ट देना होता है? मैं एक यार, एक मिनट मैं आपको सब पहले शेयर कर दूं। हाँ। ठीक है, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया, यस। यार देखो, N10 जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो हम्म, अपने लोकल सर्वर में भी। ठीक है, और आप चाहो तो उसको क्लाउड सर्वर जो N10 का खुद का प्लेटफॉर्म है उसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा, आपको N10 तो यूज़ अच्छे से करना आता ही है ना? मैंने मेक किया है, एन पे कभी काम नहीं किया। ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है। हम्म, तो सर्वर आपके पास अपने होंगे ही। तो मैं हाँ। रिकमेंड करूंगा कि जिस पहले फर्स्ट 15 डेज का तो ये फ्री ट्रायल देते हैं, जो आप ठीक है। N10 पे यूज़ कर सकते हो। तो वहां पे आप यूज़ करके फिर आप उसको लोकली अपने सर्वर में इंस्टॉल कर लो। यार उसमें फिर गाइड करना पड़ेगा। वो मैं एक वीडियो मैंने उस पर बनानी ही है, मैं वो उस पर वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। बहुत बहुत इजी प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके ऊपर। ठीक है। तो वो आप लोकली भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपको वो जो 20-25 यूरो है वो महीने के वो बच जाएंगे आपके। और एपीफाई है जो आपको पे करना पड़ेगा, मगर वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्टर यूज़ कर रहे हो बेसिकली। तो वो जैसे हम्म। जैसे आप एक्टर्स यूज़ करोगे तो वहाँ पे उसकी कॉस्टिंग आपकी आती रहती है, मगर वो भी नेग्लिजिबल ही मानो यार, उसको ज़्यादा नहीं आता उसका। जैसे फॉर एग्जांपल आप कर ही रहे हो हम्म। सारे लोगों का, तो अगर ये सारे हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो अप्रोक्स कितना मंथली आएगा? यार देखो, जो मेरा कंटेंट क्रिएट होता है उसमें मैं जेमिनाई और इनकी एपीआई यूज करता हूँ, ठीक है। तो $5 भी नहीं आता यार। नहीं, एपीफाई की बात कर रहे हैं भाई। एपी फाइव के अंदर मेरा तो यार देखो स्क्रेपिंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम्म। मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए और मल्टीपल नीच में वर्क कर रहा हूँ। मगर आप एक क्लाइंट के लिए अगर मानोगे तो $5 से $10 मैक्सिमम। हाँ, ठीक है, मतलब बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ $10 हायर साइड। हाँ हाँ, वेरी हायर साइड, वेरी हायर हम्म। साइड, अदरवाइज वो भी नहीं आएगा आपका। नहीं, अगर $10 खर्च करके मेरे को $1000 आ रहा है तो आई डोंट नहीं नहीं, माइंड। वो हाँ, वो तो देखो यार ऑब्वियस है यार, अब 10 इतना तो खर्च करना भी पड़ेगा। मगर वो मैंने कहा ना कि जैसे अगर आप वार्म लीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बार बार अगर आप वो पोस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है, उसको स्क्रैप कर रहे हो, तो वो वहां पे मेरे ख्याल से $1 लेते हैं शायद 1000 प्रोफाइल्स को स्क्रैप करने का, 1 या $2। तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लो कि अगर आपको एक महीने में 10,000 करनी है, वो $2 ले रहा है 1000 के, तो $20 ले लेगा आपके 10,000 के। डिपेंडिंग अपन कितना कर रहे हाँ, हैं। और 10,000 तो आप एक दिन में, एक महीने में रीच आउट कर भी नहीं सकते। मेरे पास एक टूल है जो ऑलरेडी ये स्क्रैप करके देता है मेरे को, बट मैनुअल होता है, वहाँ पे कमेंट पे जाके क्लिक करो तो आ जाता है, नहीं, वो तो स्क्रैप फिर कर दो। मैनुअल हो गया ना, एक एक करके। हम्म। तो वो तो मैनुअली तो आप वैसे भी कर ही सकते हो। तो उसमें तो हम्म। टूल की नीड ही नहीं है। अब किसी प्रोफाइल, किसी पोस्ट में मान लो 500 कमेंट है, 500 कमेंट पे तो करने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। नहीं नहीं, वो जस्ट वो कमेंट के नीचे दिखाता है कि स्क्रैप कर लो, वहाँ पे क्लिक करो, स्क्रैप अच्छा। कर देता नहीं, मगर पर वही है ना कि आप 500 कमेंट को भी अगर आप स्क्रैप करने बैठोगे तो आपका आधा घंटा तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि क्लिक भी तो करना ही है एक एक करके। है।
तो वो वाली चीज़ है। तो उसमें अगर हजार कमेंट्स अगर मेरे $2 में स्क्रैप हो रहे हैं तो बहुत है। हाँ ठीक है, इतना इट्स तो ओके। बहुत है। मैं बस वो कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि महीने का कितना मेरे को पे आपको करना। महीने का ये पड़ेगा, अगर आप एनीटाइम नहीं अपने लोकल सर्वर में इंस्टॉल कर लोगे तो मेरे हिसाब से $20 से $30 में आपके सारे काम हो जाएंगे महीने के अंदर ही। ओके। वो भी अगर आपका यूज केस बढ़ जाएगा तो, अदरवाइज तो ये आपका 10 के नीचे ही रहेगा। ठीक है। होस्टिंगर पे हो जाता है N10? हाँ हाँ। हाँ तो अपने पास तो क्लाउड वाला है, उस पे कर लेंगे हाँ मैं डायरेक्ट वही कह रहा उसी। हूँ, वो आप बिंदास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक मैं है। भी इसको अपने लोकल सर्वर्स में ही इंस्टॉल करके रन कर रहा हूँ इस समय। हाँ क्योंकि उनके सर्वर पे किया तो एनीवेज पे करना ही है, बट लोकल पे है कि लोकल सिस्टम पे अगर करो तो वो जब बंद किया सिस्टम तो बंद हो जाएगा। अगर होस्टिंगर पे डाल देते तो वो तो 24/7 चलता चलता रहेगा, रहे। यस यस यस। तो वो कोई इशू नहीं है, वो आप कर सकते हो बिंदास। मैं भी ऐसे ही ठीक। यूज कर रहा हूँ। ठीक है। जस्ट एज अ क्यूरियोसिटी, आपका डन फॉर यू सर्विस का क्या है चार्जेस? यार डन फॉर यू सर्विसेज में ना, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग उसमें करते क्या है, तब आपको समझ में आएगी वो चीज़। तो मैं एक बार ही आपको दिखा देता हूँ, वेट। कि लॉन्ग रन में मैं चाहूंगा कि कोई कर दे, मेरे को बस मीटिंग आए मैं क्लोज करूं और खुश रहूं। नहीं, हमने ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय सॉल्व करी है यार। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हमारा डन फॉर यू सर्विसेज में है, तो मैं इसमें प्रॉब्लम्स और इन सब की बात नहीं करने वाला आपसे। ठीक है। ठीक है, ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो आपको सारी पता ही है। ठीक है, इन सब में हाँ, सीधा सीधा पॉइंट की बात पर आते हैं। अच्छा, ये वाला सिस्टम जो हमारा वो सेल्स नेविगेटर के बिना वर्क करता है। ठीक है, ओके। तो विद और विदाउट दैट यू नीड टू डिसाइड। तो इसमें हम क्या करते हैं, वही सबसे पहला प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एवरीथिंग, कि आपकी प्रोफाइल को समझ के, आपका एसीपी को समझ के प्रॉपर। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, आपको पूरा ना एक क्वेश्चनेयर देंगे। ठीक है, वो आई थिंक उसमें 20 से 25 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, ठीक। और वो हम हमें सबको बोल देते हैं कि वो आप फिलअप करो विदाउट द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ओके। तो आप खुद से उसको फिलअप करो ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आपके थ्रू आए, ना कि चैट जीपीटी के थ्रू। ठीक है, तो फिर ओके। उसके बाद ये वाला सिस्टम स्टार्ट होता है। तो वही प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, फिर कंटेंट विजिबिलिटी, जहाँ पे हम आगे पूरे मतलब कंटेंट प्लान कर लेते हैं, क्या कंटेंट जाएगा क्या कंटेंट नहीं जाएगा, टोफू मोफू बोफू के अकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है, फिर आपका आता है इंटेंट बेस्ड माइनिंग, जहाँ पे हम आपकी बेसिकली ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वार्म ऑडियंस को, ओके। कि थ्रू ये ऑडियंस। जो भी है। हाँ, जो मैंने अभी आपको वो तरीका बताया उससे। ठीक है, और इसमें अगर सेल्स नेविगेटर आप देते हो तो हम सेल्स नेविगेटर के थ्रू भी इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें वार्म आउटरीच। तो कोल्ड आउटरीच पे तो हम काम ही नहीं करते हैं। तो हम पहले से ही उन पर आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे वार्म कैटेगरी में आते हो, तो वार्म वार्म आउटरीच हमने उनको बिंदास कर लिया, और फिर वार्म आउटरीच करके हमने आपको रिजल्ट्स ला के दे दिया। ठीक है, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही टच वन टच टू जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, राइट। और इसमें इंट्रो मैसेज, फिर उसके बाद आपका पहला फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप। ठीक है। ठीक है, अब इसमें बस एक चीज जो हम नहीं करते वो हम सबको सामने से बता के चलते हैं। जैसे हम्म। लास्ट स्टेप है वो सेल्स नेविगेटर वाला है। ठीक है, ठीक। जो एक चीज हम नहीं करते इसमें, दैट इज योर रिप्लाई। ओके। कि अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने हमें रिप्लाई किया तो पहले 2 से 3 महीने हम उन्हें रिप्लाई नहीं करेंगे, वो लीड आपकी हो गई। उसने कोई क्वेश्चन पूछा आपके बारे में या कुछ भी, उसका रिप्लाई आया हमारी आउटरीच के बाद, वो आपको वहां से टेक ओवर करना है। रीजन इसका सबसे बड़ा ये है कि हम उसमें आपका एंगल देखना चाहते हैं कि हाउ यू टेक द थिंग्स फर्दर एंड इन विच डायरेक्शन, क्योंकि हर क्लाइंट के पास ना यार डिफरेंट सर्विसेज होती है। जैसे आपके पास भी, मेरे पास 5 सर्विसेज आपने मेरे को गिनवा दी। ठीक है, अब वो तो आप मैंने क्या देखा ही नहीं। सर्विस उन्हें सेल करना चाह रहे हो, वो हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। और मेरे को उसके लिए बीडी को पहले ट्रेन करना पड़ेगा। हम्म। वो बीडी कभी ट्रेन हो पाएगा जब उसको आपका क्या कहते हैं, मैसेजिंग पता होगी। तो वो ओके। लीड हमारी डेड ना हो, इसलिए हम वहां पे रिप्लाईज नहीं करते फॉर द फर्स्ट 2 to 3 months। जब हमें आपका पैटर्न समझ में आ जाता है, देन वी ट्रेन, मतलब साथ साथ हमारा बीडी ट्रेन होता रहता है। जब हमें आपका पैटर्न समझ में आ जाता है तब वी टेक ओवर दैट पार्ट। ओके। तो ये हम सबको सामने से बोल के चलते हैं कि वी विल डू एवरीथिंग इन द फर्स्ट 2 to 3 months एक्सेप्ट द रिप्लाई। हम्म। क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी को हायर किया था हम्म आज से 4 months बैक। हम्म। उन लोगों ने पूरा ही करा था और ऐसा किया था, मेरे को लग रहा था यार इससे बढ़िया मैं मेरे इंटर्न को लगा देता। नहीं, ऐसा होता है यार, मेरे को पता है। तभी तभी मैंने आपको यहाँ पे सामने से ही बता दिया कि एजेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यार, वो लीड। यार देखो ना,
आउटरीच किया, लीड आ गई और प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया, बहुत मेहनत कर ली। अब रिप्लाई आया, वो गया नहीं सही डायरेक्शन में, उस बंदे की तो सारी मेहनत खराब ना, और आपका टाइम खराब। ट्रू ट्रू। तो उससे बेटर है कि पहले ही क्लाइंट को समझ लो, और क्लाइंट को समझने के लिए उन्हें ही रिप्लाई करने दो, फिर आप समझ के फिर आप नेक्स्ट उन्हें रिप्लाई करना स्टार्ट करो। तो ट्रू। ये हमारा मॉडल वर्क करता है। इसकी कॉस्टिंग हमारी आती है $350 पर मंथ। $350। हम्म। कितना? 25,000। ये आपका पड़ेगा 35,000 के आसपास। ओके। एक मिनट में बता ही देता हूँ, 1 सेकंड। 90/92 का है ना आपका, 90 से ही कर लेते हैं इंडिया में तो। फ्लक्चुएट करता है, वैसे भी बैंक को बोलो तो वो 88 ही देते हैं यार। 90 इकतीस, के 90, मैंने के 90 से ही किया है, 31,500, वही 30,000 बेसिकली। ठीक है। वही 30,000 महीना। तो इसमें आपकी कॉल्स बुकिंग हो जाती हैं, अपॉइंटमेंट बुकिंग आपके पास अच्छी खासी आ जाती है। ठीक है, मेरे को एक बारी इसका वो भेजना यार, केस स्टडीज वगैरह कुछ होगा ना, आप मेरे को व्हाट्सएप करना। तब तक मैं ये अप्लाई करके देखता हूँ। यार ये अगर इसमें केस स्टडी मैं अगर आपको लाइव ही दिखाऊं तो, जैसे यार जो मैंने अभी आपको वो कॉल्स दिखाई है ना, वो हमने इसी पर्सन के लिए मल्टीपल आउटरीच करके हमने कॉल्स बुक करी वहां पर, ठीक है। तो मैं आपको ना एक बार साथ में कुछ दिखाई देता हूँ। मल्टीपल क्लाइंट्स हैं यार, तो उन सबके लिए अलग अलग चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, ये आउटरीच आपका जो होता है, वो आउटरीच भी आपका प्रॉपर उसी अकॉर्डिंग होता है, क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दिखाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है। 1 सेकेंड ना। जैसे ये जॉर्जियन शिखा, तो इनका अगर मैं हम्म। आपको मैसेज दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जॉर्जिया, शी इज फ्रॉम कनाडा एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम कनाडा, शिखा, ठीक है। तो इसमें अब दोनों के मैसेज अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। I noticed you are working with EFT to help people with anxiety and depression through energy for transformation. I noticed you are teaching yoga and meditation across multiple venues in the GTA, from senior living facilities to golf clubs. ठीक है। ओके। अब ये तो हो गया आपका इंट्रो मैसेज, ठीक है। हम्म। अब जहां पे बहुत लोग मार खाते हैं वो मैं बताता हूँ। इसने लिखा साउंड्स इंटरेस्टिंग, तो हमने कहा हम्म। कॉल बुक कर लो आप, ठीक है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इसने कॉल बुक नहीं करी। अब हम्म। मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो रिमाइंडर मैसेज डालते हैं कि हैव यू फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल बुकिंग द कॉल और समथिंग लाइक दिस। यहाँ हम्म। पे ना पर्सन को प्रॉब्लम नहीं आई है कॉल बुक करने में, क्योंकि वो इतना बेवकूफ नहीं है, समझना है हमें ये चीज, ठीक है। वो हम्म। उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी भी कॉल बुक करने के लिए। तो हम राइट। यहाँ पे उसको रिमाइंडर्स ना डाल करके हम अगेन उसको वैल्यूएबल मैसेज देते हैं जिसको वो नो ना कह सके। हम्म। और आप दोनों केसेस में ये देखोगे कि यहाँ पे भी इसने कहा आई वुड लव टू हैव अ चैट, डू यू हैव अ बुकिंग लिंक, ये तो सामने से ही मांग रही हमने दिया, बट देखो इसने कॉल तब भी बुक नहीं करी, ठीक है। हम्म। अब मेरा हम्म। अगला मैसेज इसको गया ही कुछ और आप इसका रिप्लाई पढ़ो। हाय, हाय सान्या, हाय जॉर्जिया, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन डेवलपिंग, अ टूलकिट इज अ फाउंडेशनल प्रैक्टिस विद सब्सिक्वेंट प्रोग्रामिंग फॉर ग्रोथ। ओके। अब ये तभी इसने बोला जब मेरे रिमाइंडर मैसेज में मैंने इसको ये बोला ही नहीं कि भाई तूने बुक कॉल बुक क्यों नहीं करी। मैं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि भाई तू मना ना कर सके मेरे को किसी भी चीज के लिए, ट्रू। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ आई थिंक देना थिंकिंग मैच एंड वे ऑफ वर्किंग स्टाइल, अब उसने फिर जाके कॉल बुक करी और इसके साथ भी सेम हुआ। इसने तो हमें डायरेक्टली इस मैसेज के बाद ही बोल दिया कि भाई मेरा नंबर ले लो मेरे से। ठीक है। ओके। तो नीड समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम, मैंने वही बताया ना कि डन फॉर यू में तभी हम ना सामने से ही मना कर देते हैं कि यार रिप्लाई हम ऐसे नहीं करके देंगे जब तक हमें ही समझ में नहीं आता, तो हम पहले पूरा समझते हैं। तो ऐसे करके लाइक वी हैव मल्टीपल पीपल जिनके लिए हम ये सब मैनेज कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस है वो वही है जो मैंने आपको 5 स्टेप प्रोसेस दिखाया। तो उसके बाद नीज, फिर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, और आपका विनिंग ऑफर, दैट इज वेयर वी हेल्प द क्लाइंट आउट। ठीक है, मैं एक बार ये अप्लाई करके देखता हूँ। फैंसी। मेरे से हो गया, बहुत बढ़िया, बच जाओगे। नहीं होगा तो मेरे लिए कर देना। करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, whenever you are ready, ठीक है। मैं आपको डिटेल भेजता हूँ आपके सारे कोर्स सक्सेस एंड ऑल थिंग्स, और आपको मैं वो ग्रुप भी देता हूँ व्हाट्सएप का, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट पार्ट, ठीक है। ओके। कूल। ओके सूरज, थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग थैंक टू यू यू। यार। थैंक यू, सेम यार। अच्छा बाय द वे, हम तो मिल भी सकते हैं क्योंकि मैं भी दिल्ली से ही हूँ। दोस्त, मैं अप डाउन करता रहता हूँ दिल्ली। करंटली मैं मेरे होम टाउन में अच्छा। हूँ, विच इज इन बिहार।
चलो बढ़िया, कभी भी whenever you're coming next to Delhi, तो तो दिल्ली जस्ट में आता हूँ तो देन आई कॉल यू। ये डायरेक्ट नंबर है ना? 97, हाँ 9711 वाला, यस। तो मैं स्टोर कर लेता हूँ हाँ हाँ, और नो वरीज। जब उसके मर्जी बाद। बिंदास कोई भी, क्योंकि मैं अभी वैसे दिल्ली में मैं इवेंट भी करवाने का सोच रहा हूँ एक, तो काफी क्योंकि लोग ना दिल्ली के हो गए हैं, तो ओके, उसमें एक छोटा सा इवेंट भी वहाँ पे करेंगे, छोटा सा गेट टुगेदर। बताना भाई, आ जाएंगे। डन सीन, डन सीन। ठीक है। चलो। ये कहाँ पे हो बेस्ड? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, आपने ये देखा होगा ना एनएसपी या फिर शालीमार बाग, तो आई लिव हाँ इन हाँ। शालीमार बाग। ओके, रेड लाइन। मेरे पास तीनों लाइन है, पिंक भी है, येलो भी है और रेड भी है, तीनों आसपास ही है। शालीमार बाग कभी गया नहीं, एनएसपी गया हूँ। हाँ, वो हमारा एनएसपी के अगला ही स्टेशन बेसिकली आपका शालीमार बाग है, मगर वो पिंक लाइन से आता है। हमारा फेवरेट स्पॉट होता था वो। एनएसपी, भाई हम इतना बोर हो गए ना वहां जा जा करके, मतलब ऐसा हो गया कि भाई नहीं हो पाएगा। हम तो महीने 2 महीने में निकलते ही थे भाई। मेरा तो अच्छा। ऐसा होता था कि मैं फ्लैट से नीचे 1 महीने 2 महीने में उतरता था। ओह। तो वो एक है अपने को चैलेंज। मैं लोगों से बहुत कम मिलता हूँ। ओके ओके। अभी यहाँ भी आया हूँ तो मैं 10-15 दिन में बाहर निकलता हूँ, सब एवरीवन इज लाइक, मेरे को लगा तू चला गया था। मैं भाई होता फालतू है, में क्या करना है, काम करेंगे हम अपना। काम करेंगे, सही बात है, ये टाइम ही काम करने का है यार, बिंदास। तो आओ कभी बैठेंगे एनएसपी में, वहां पे बिजनेस डिस्कस करेंगे फिर, व्हेनेवर यू आर कमिंग नेक्स्ट, ठीक है। चलो। ओके ब्रो, सर, थैंक यू। थैंक यू।